ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیا تم نے مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے؟ زارون کاردار نے اس کے خوف سے سرد پڑتے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے سوال پوچھا تو وہ بے آواز روتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر زارون نے نرمی سے اس کی گال پر تھپکا۔ گڈ گرل، اب گھر جاؤ۔ اگر کسی کے سامنے کچھ بھی بولا تو سزا تمہاری سوچ سے بھی بری ہوگی۔ پھر وہ گھر لوٹی اور خوف سے بیمار پڑ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نہ نکلی کہ کہیں زارون کا سامنا نہ ہو جائے جو اس کا تایا زاد تھا، پر اسے شدید جھٹکا لگا جب اسے معلوم ہوا اس کی شادی زارون سے طے ہو گئی ہے۔ اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں خنکی چھائے ہوئی تھی۔ تقریباً رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر آ رہی تھی کہ اچانک سنسان راستے پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ کیا ہوا خان بابا؟ بیٹا پتہ نہیں گاڑی کیوں اچانک رک گئی، میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر ڈرائیور نیچے اتر کر گاڑی کا بونٹ کھولے دیکھنے لگا۔ خان بابا کچھ پتہ چلا کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا، انجن گرم ہو گیا ہے۔ میں آس پاس کہیں پانی دیکھتا ہوں۔ آپ گاڑی لاک کر لیں، گاڑی سے نیچے نہیں آنا۔ جی خان بابا، جلدی آنا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے نیچے اتری اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سردی بھی ہو رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر ٹہل کر ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ یہ خان بابا نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور ساتھ ہی اس طرف قدم بڑھا دیے جس طرف ڈرائیور گیا تھا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے کچھ سائے نظر آئے اور پھر اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی کی آواز سے ایک چیخ نکلی تو ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف آیا۔ اس کا خوف سے سارا جسم کپ کپا اٹھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ اپنے اندر تھوڑی ہمت پیدا کرتے وہ 2 قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ مقابل شخص بھی اس کی طرف بڑھنے لگا، ماتھے پر بل ڈالے، اور جب وہ شخص قریب آیا تو یہ دیکھ کر وہ اور بھی حیران رہ گئی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے اس نے ایک بار غور سے اسے دیکھا۔ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ ہاں، وہ وہی تو تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سرد آواز میں پوچھا گیا۔ میں اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پر آئی تھی تو میری گاڑی خراب ہو گئی۔ لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ٹوٹے الفاظ سے وہ سامنے کھڑے شخص سے سوال کر رہی تھی۔ تم نے ابھی یہاں کچھ نہیں دیکھا ہے نا؟ لیکن ابھی گولی… میں نے کہا تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ پہلے سے بھی سرد لہجہ تھا۔ آپ میری بات تو سنیں، ابھی میں نے ادھر گولی چلنے… میں نے بکواس کی ہے کہ تم نے یہاں کوئی گناہ ہوتے نہیں دیکھا۔ ڈیم اٹ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اس بار قارون کاردار دھاڑتے اس کے جبڑا دبوچتے ہوئے بولا تو وہ ڈر گئی تھی۔ تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ گڈ گرل، اب جاؤ گھر، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی اور گناہ ہو جائے۔ نشا کے سہمے ہوئے روپ پر گہری نظر ڈالتے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی۔ رکو، ابھی 2 قدم ہی چلی تھی جب زارون نے اسے روکا۔ اگر تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور سزا بھی بہت بھیانک ہوگی۔ سمجھ گئی؟ خود سے بھی یہ بات نہیں کرنی، بھول جاؤ جو سنا یا دیکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف گئی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنسو خود بخود بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور آ گیا اور گاڑی کے انجن میں پانی ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی چل پڑی۔ زارون بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کسی انسان کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ زارون کوئی اور نہیں، اس کا تایا زاد بھائی تھا۔ وہ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس کی تایا کے 2 بیٹے تھے،
एक हारून जिनकी शादी हो चुकी थी और छोटा ज़ारून जिसकी सरगर्मियों के बारे में किसी को मालूम नहीं था, और निशा अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे। वो थी भी बहुत मासूम, थोड़ी शरारती थी, लेकिन बिला वजह ज्यादा किसी को तंग नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों से डर जाती थी और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। अभी सिर्फ 17 साल की थी। ज़ारून बहुत संजीदा रहने वाला कम गो इंसान था। निशा उसके साथ बहुत कम बात करती थी, जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बस उस वक्त। लेकिन आज जो कुछ उसने देखा, उसके बाद तो वो शायद ज़ारून कारदार को देखने से भी खौफजदा हो जाए। जब निशा घर पहुंची तो उसकी माँ फरीहा बेगम लाउंज में बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर पहुंची तो फरीहा जल्दी से उसकी तरफ आई। बेटा, इतनी देर कर दी, मैं इतनी टेंशन में थी, और मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। निशा ने अपना मोबाइल देखा तो फरीहा बेगम की 20 मिस्ड कॉल्स थीं। सॉरी मामा, मोबाइल साइलेंट पर था, पता नहीं चला, आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा, जाकर आराम करो। निशा जल्दी से अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। बेड पर बैठते ही सारा वाकया दोबारा उसकी आंखों के सामने लहराने लगा और वो सोचने लगी कि क्या वाकई ज़ारून भाई कातिल हैं। बस यही एक सोच उसे बार बार आ रही थी। वो बहुत डर गई थी और खुद को कंबल में छुपा लिया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह होने से कुछ देर पहले ही वो सोई, लेकिन जब नाश्ते पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे तो उसकी अदम मौजूदगी की वजह से आगा जान ने फरीहा बेगम से पूछा कि निशा कहाँ है। आगा जान, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। मेरे ख्याल से वो रात लेट सोई थी, इसी वजह से नींद से नहीं जागी। इतना कहकर वो कुर्सी खिसका कर उठी और निशा के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसके कमरे में गई तो उन्होंने निशा को आवाज़ें दी, लेकिन जब निशा के वजूद में ज़रा भी जंबिश ना हुई तो उन्होंने आगे बढ़कर निशा को बुलाना चाहा, और जैसे ही हाथ उसके जिस्म को लगा तो फरीहा बेगम घबरा गई, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। वो घबराती हुई नीचे आई और अपने शौहर से बोली कि निशा को बहुत तेज़ बुखार है, आप प्लीज़ डॉक्टर को बुला लें। ये सुनकर सभी परेशान हो गए और नाश्ता छोड़कर निशा के कमरे में भागे। लेकिन ज़ारून वहीं बैठा सोचने लगा और फिर एक मुनफरिद मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे में चला गया। निशा ज़ारून को अपने कमरे में देखकर घबरा गई और फौरन अपने बाबा के साथ चिपक गई। उसके यूं खुद को सहमे हुए देखकर ज़ारून की आंखों में एक अजीब सी सख्ती उभरी। उसने गुस्से से निशा को घूरा तो वो फौरन नज़रें झुका गई, जैसे उसकी नज़रें मिलाने की हिम्मत ही ना हो। ज़ारून की खामोश मगर सख्त निगाहें उसके दिल की धड़कनें मजीद बढ़ा रही थी और वो बेख्तियार अपने बाबा के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। ज़ारून को निशा का ये डरा डरा रूप बहुत प्यारा लग रहा था। घबराई हुई निशा पर वो दिल हार बैठा, लेकिन ये सब जज्बात उसने अपने अंदर दफना दिए। आदिल साहब ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा ये बहुत ज़्यादा डर गई है, जिसकी वजह से इसे बुखार हो गया है। अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। इतना कहकर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन आदिल को पकड़ाई तो वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए चले गए और फिर वहीं से मेडिकल स्टोर चले गए ताकि निशा के लिए दवाई ला सकें। छोटी मामा, आप निशा के लिए सूप बना दें। हाँ ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। आगा जान, आप भी चलें, नाश्ता कर लें। निशा को आराम की ज़रूरत है तो इसे आराम करने देते हैं। ज़ारून ने सबको बहाने से बाहर भेज दिया और खुद छोटे छोटे कदम लेता निशा के पास आकर बैठ गया। तो बोलो, क्या हुआ जो तुम इस कदर डर गई? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। निशा ने फौरन नजरें झुका ली। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी को जरा भी भिनक लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जी ठीक है ज़ारून भाई। ज़ारून जाने लगा जब निशा ने उसे पुकारा। हाँ बोलो, क्या आपने उस आदमी को मार दिया? हाँ, और अगर तुमने ज़बान खोली तो तुम्हें भी मार डालूंगा।
समझी? नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर वो चला गया। अब निशा कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थी। वो तब कमरे से बाहर निकलती जब ज़ारून घर पर नहीं होता था। आज भी उसे यकीन हो गया कि ज़ारून घर पर नहीं है, तो वो अपने कमरे से निकली। अभी 2 कदम आगे बढ़ी कि ज़ारून उसे अपने कमरे से निकलता नजर आया। निशा उसे देखकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ पलटी। रुको, ज़ारून ने आवाज दी। जी। निशा पलटी। मुझसे छुप रही हो ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब मैं घर में होता हूं तो तुम कमरे से क्यों नहीं निकलती? नहीं ज़ारून भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अपनी स्टडी में मसरूफ थी। असल में मेरे टेस्ट हो रहे हैं ना, तो टेस्ट की तैयारी में सारा दिन गुजर जाता है। ज़ारून ने उसे झूठ बोलते देखा तो एक मासूम सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई, जिसे वो जल्दी से छुपा गया। अच्छा ठीक है, जाओ। और वो भागते हुए नीचे अपनी मामा के पास आ गई। दिन यूं ही गुजरते रहे कि एक दिन निशा कॉलेज से आई तो लंच पर सब मौजूद थे। अचानक आगा जान ने कहा, मैंने एक फैसला किया है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। कैसा फैसला आगा जान? फैसल साहब, निशा के वालिद ने पूछा। यही कि निशा और ज़ारून का निकाह कर दिया जाए। माशाल्लाह से दोनों घर के बच्चे हैं और हमारी प्रिंसेस भी हमारे पास रह जाएगी। ये सुनकर ज़ारून के लबों को मुस्कुराहट छू गई, क्योंकि उसने तो रात ही तो आगा जान से निशा से शादी की बात की थी और आगा जान ज़ारून की कोई बात नहीं टालते थे। उन्हें अपना ये पोता बहुत अजीज था। लेकिन निशा पर यह खबर बम बनकर गिरी और वो आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चली गई। फरिया बेगम जल्दी से उसके पीछे गईं और देखा कि निशा धुआंधार रो रही है। निशा मेरी जान, क्या बात है? क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं? नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ज़ारून भाई से कभी शादी नहीं करूंगी। आप आगा जान से कह दें। लेकिन क्यों बेटा, कोई वजह भी तो होनी चाहिए। बस, मैंने नहीं करनी उनके साथ शादी। आप इसे जो भी समझे। निशा ने जिद्दी अंदाज में कहा तो फरीहा बेगम नीचे आ गईं और उन्होंने सबको निशा का फैसला बताया, जिसे सुनकर बाकी सब तो खामोश हो गए, लेकिन ज़ारून की आंखों में शोले जलने लगे। लेकिन कुछ सोचते हुए वो खाना खाने लगा और बाहर चला गया। अगले दिन दोपहर को जब वो घर आया तो सब लाउंज में बैठे थे। आगा जान, फिर आपने इस शादी के बारे में क्या सोचा? बच्ची नहीं मान रही तो ना ही समझो। मैं हर हाल में निशा से निकाह करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये निकाह तो हर सूरत होगा। समझ नहीं आती आप लोगों को मेरी बात? ज़ारून कारदार जो एक दफा इरादा कर ले तो उससे पीछे नहीं हटने वाला। उसकी अंगारों की मानंद सुलगती निगाहें और रगें तनकर उभरी हुई थी। बकवास बंद करो अपनी नामुराद। अगर बच्ची नहीं मान रही तो हम ये निकाह कभी नहीं होने देंगे। और तुम क्या निकाह की रट लगाए हो? अगर इतनी ही शादी की आग लगी है तो हम कोई और लड़की ढूंढ देते हैं, लेकिन निशा से जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, समझे तुम? ये कहते हुए जाहो जलाल से आगा जान का पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए, मुझे बस निशा चाहिए। सुना आपने? सिर्फ और सिर्फ निशा। एक एक चीज को उठाकर दीवार पर मारते उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया तहस नहस कर दे। आप बताएं और कितने हजार मर्तबा दोहराऊं मैं अपने अल्फाज जो यकीन हो? कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि मैं आपके इरादों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। वो हलक के बल चीखते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और तुम कुछ नहीं करोगे, ये मेरा हुक्म है। आगा जान ने गुस्से से 2 टोक लहजे में कहा तो उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट ठहरी। लहू रंग आंखों में अजब बेहिसी का तासुर उभरा। ज़ारून कारदार किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि निशा सिर्फ और सिर्फ ज़ारून कारदार की है और रहेगी। जज करने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाते
وہ واپس بے نیازی کا چولا اوڑھ کر پرسکون ہو چکا تھا۔ ایک بات تو تم بھی سمجھ لو زارون کاردار، جب میں ہی نہیں مانوں گا تو کیسے کرو گے؟ آغا جان بے شک زارون سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ اپنی پوتی کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کرتے، اور اس سے بھی وہ بہت پیار کرتے تھے۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں آغا جان، جی نہ مانے تو میں خود انتظام کر لوں گا، بارات میں آپ سب لازمی آئیے گا۔ پھر بے تاثر نظر تمام خاموش تماشائیوں سے گزارتے وہ بے خوفی سے چلتا، خون آشام نظروں سے خود کو گھور رہے آغا جی کے مقابل آیا۔ ایک بات یاد رکھنا آغا جی، اگر آپ نے نشا کو میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کا سوچا بھی تو میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ بات آپ سب لوگ اپنے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اتنا کہہ کر وہ لب بھینچے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب سامنے ہی اسے نشا سہمی ہوئی نظر آئی تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے سامنے آیا اور دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا میری جان، اتنا سہمی ہوئی کیوں ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، تم تو میری روح میں بستی ہو، میں تمہیں کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اور ابھی نیچے جو میں نے سب کو کہا وہ تو تم نے سن لیا ہوگا، اس لیے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تو میں تمہارے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان لے لوں گا۔ اس کے گال کو تھپتا پاتے ہوئے بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور نشا سے کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے پلٹی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا، جیسے زارون کاردار ابھی کے ابھی نشا کو لے جائے گا۔ اس کا دل ڈر کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں زارون سے شادی کبھی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں ایک قاتل سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں شادی نہیں کروں گی، ہاں کبھی نہیں۔ وہ خود کلامی کرتے بڑبڑا رہی تھی اور پھر بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ کچھ دیر بعد فریحہ بیگم نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نشا نے ڈرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کی ماں سامنے کھڑی تھی۔ ارے ماما آپ آئے نا؟ نشا نے پیچھے ہو کر اپنی ماں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ فریحہ بیگم کمرے میں آئیں اور انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر نشا کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو نشا، مجھے پتا ہے تمہیں تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن ایک بار زارون کے بارے میں دل سے سوچ کر تو دیکھو۔ وہ بہت اچھا ہے، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے اور تھوڑا ضدی بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک برا انسان ہے۔ دیکھو، میں نہیں چاہتی کہ زارون کی ضد کی وجہ سے گھر کے بڑوں میں کشیدگی بڑھ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں تم ایک بار اس کے بارے میں سوچو ضرور، باقی تمہاری مرضی۔ لیکن ماما، میں چاہ کر بھی نہیں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں بیٹا، ایسی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ماما، وہ کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر نظریں چرا کر بولی کہ زارون بالکل اچھا انسان نہیں، ایک نمبر کا غنڈا موالی ہے۔ دیکھا آپ نے کبھی انہیں کیسے غنڈوں جیسا ہولیا، رات کو دیر دیر سے گھر آنا اور اب زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنا، کبھی کبھی تو ڈرنک بھی کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انہیں خود کا ہوش نہیں رہتا، کسی کے ساتھ کیا کر گزرے انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور میں نے خود انہیں دیکھا کہ… ابھی اس نے اتنا ہی کہا، نشا جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ کر گئی۔ کیا بولو نشا، چپ کیوں کر گئی؟ کیا دیکھا تم نے؟ کچھ نہیں ماما، بس آپ مجھے اس شادی کے لیے فورس مت کریں۔ نشا کی ماں اپنی بیٹی کی بات سن کر چپ ہو گئیں اور وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئیں، اور نشا پھر سے لیٹ گئی۔ لیکن آدھی رات کو اسے بھوک نے شدت سے ستایا تو وہ نیچے کچن کی طرف آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، پوری حویلی میں رات کی تاریکی کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نشا نے فریج کھولی تو سامنے بریانی پڑی تھی۔ بریانی دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی شدت سے چمکی۔ جلدی سے بریانی ایک الگ پلیٹ میں نکالی اور اوون میں رکھ کر اوون آن کر کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی اس کے نازک لبوں پر کسی کا بھاری ہاتھ آ چکا تھا۔ چلانے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ جب تمہیں پتا ہے اس گھر میں ایک غنڈا نما شخص رہتا ہے
जो शक्ल से भी गुंडा ही लगता है और शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हें आधी रात को यहां इस तरह से बेफिक्री से बिना दुपट्टे के तो हरगिज नहीं होना चाहिए। उसके सरापे पर गहरी नजर डालता उसे घूरते हुए बोला। इरादा यकीनन उसे डराने का था। निशा की आवाज जैसे हलक में ही दब कर रह गई। उसके हाथ उठाने के बाद भी वो एक लफ्ज भी ना बोल पाई। उसे याद आया कि भूख की शिद्दत से वो दुपट्टा लेना ही भूल गई थी। उस वक्त उसे इस शख्स से इतना खौफ आ रहा था कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऊपर से इस शख्स ने उसकी बातें उसके मुंह पर दे मारी जो उसने अपनी मां से की थी। मतलब ज़ारून ने सारी बातें सुन ली थी। उसे लगा ये शख्स उसे अभी जिंदा निगल जाएगा। वो तो पहले ही उससे बहुत खौफजदा रहती थी, लेकिन इस वक्त इस शख्स से डर के मारे उसका सारा वजूद कांप रहा था। मगर वो उसे देखकर तलखी से मुस्कुराता, पीछे की तरफ कदम ना हटाता तो यकीनन वो बेहोश हो जाती। वो एक गहरी नज़र उस पर डालता पीछे की तरफ हुआ और निशा वहीं मुंजमद खड़ी रही। इतने में ओवन की हिप बजी। जाओ, तुम्हारा खाना गर्म हो गया है। इतना कहकर वो चला गया और निशा वहीं कुर्सी पर गिरकर लंबे लंबे सांस भरने लगी। वो बिरयानी लेने उठी ही थी कि एक दफ़ा फिर से ज़ारून की आवाज़ उसके कानों से टकराई। तुम छोटी मामा से क्या कह रही थी कि तुमने मुझे खुद देखा? क्या देखा तुमने, बताओ मुझे। निशा की आंखें फैल गईं और वो अपना सर नफी में हिलाने लगी। बताओ मुझे, क्या देखा तुमने? वो दबा दबा गुर्राया। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो, जब तक तुम सच नहीं बोलोगी मैं यहां से नहीं जाने वाला और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। वो हंसने लगा और निशा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। निशा एक एक कदम पीछे होती डाइनिंग टेबल से जा लगी तो ज़ारून ने टेबल पर निशा के दाएं बाएं तरफ हाथ रखे, निशा के कान के पास सरगोशी की। मुझे हैरानगी हो रही है कि मेरे बारे में ये सब जान कर भी तुम मुसलसल इनकार कर रही हो। इम्प्रेसिव। खैर, अब अगर तुमने दोबारा इनकार किया तो उसी गन से मैं तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कबों को डाल दूंगा। लेकिन ज़ारून भाई, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। निशा ने डरते हुए अपनी बात मुकम्मल की। वजह? ज़ारून के माथे पर बल नमोदार हुए। क्योंकि आप एक कातिल हैं। चटाख। ज़ारून ने एक जोरदार थप्पड़ निशा के मुंह पर मारा जिससे वो लड़खड़ा गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बकवास करने की? खबरदार, अगर तुमने दोबारा अपनी जबान पर यह लफ्ज लाई तो जबान काट दूंगा। और हां, अगर अब तुमने मुझसे शादी से इनकार किया तो इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्यों ना कहूं? जब आप हैं तो मैं पाबंद नहीं हूं आपकी और ना आपके हुक्म की। और एक दफा क्या, मैं हर बार इनकार करूंगी, लेकिन मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज़ारून निशा की तरफ लब भेंचे गुस्से से देख रहा था और फिर एक आईब्रो उचकाकर उसे दाद देने वाले अंदाज में देखा। बहुत खूब, क्या बात है, मेरी चिड़िया तो उड़ने लगी है। लेकिन फिक्र नहीं करो, ज्यादा देर नहीं उड़ सकोगी क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारे पर काट दूंगा। इतना कहकर ज़ारून वहां से चला गया, लेकिन निशा वहीं कुर्सी पर ढह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निशा ने बिरयानी की प्लेट वापस फ्रिज में रखी और अपने कमरे में चली गई क्योंकि भूख तो उसकी कब की उड़ चुकी थी। कमरे में आकर वो लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। निशा ने कई बार घर वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन खौफ के मारे बता नहीं सकी। दूसरा मसला ये था कि उसे ये भी मालूम नहीं था कि कोई उसकी बात का यकीन करेगा या नहीं। ज़ारून के गुस्से से सब वाकिफ थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ तक जा सकता है। उस दिन के बाद निशा की ज़ारून से दूरी बढ़ती चली गई। वो उसके सामने ही सहम जाती और कोशिश करती कि ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारे। और आज जब निशा ने ज़ारून को कहा कि वो उसके बारे में सबको बता देगी, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
ना ही चेहरे पर परेशानी के आसार आए और ना ही कोई घबराहट, जैसे ज़ारून के लिए ये बहुत आम सी बात हो। अगले दिन निशा सुबह उठी तो कॉलेज के लिए तैयार होकर नाश्ता करने नीचे आ गई। सबको सलाम करके वो खामोशी से नाश्ता करने लगी, लेकिन ज़ारून सामने ही बैठा मुसलसल इसे देख रहा था। निशा ने उसे नज़रअंदाज किया और नाश्ता जारी रखा। सभी नाश्ता करने में मगन थे कि अचानक ज़ारून की आवाज़ ने सुकून तोड़ दिया। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं, किसी काम से, शायद 1 महीना लग जाए वहां। निशा ने उसके जाने का सुनकर शुक्र अदा किया कि कुछ दिन तो सुकून रहेगा। ये सुनकर आगा जी ने लब भींच लिए और खामोश हो गए। ज़ारून ने चंद लम्हे सबको खामोश देखने के बाद एक और धमाका कर दिया। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जब मैं वापस आऊं तो आप लोग, स्पेशली तुम, उसने निशा की तरफ इशारा किया, शादी की तैयारी रखना। मैं आकर फौरन निशा से शादी करना चाहता हूं और ये फैसला फाइनल है। ये कहकर ज़ारून अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि निशा परेशानी से आगा जी की तरफ देखने लगी। आगा जी ने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, अभी मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। निशा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। उसके हाथ कपकपा रहे थे और दिल खौफ से तेज धड़क रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ारून अभी भी अपनी जिद पर कायम है और सबके सामने इतनी बेबाकी से ऐलान भी कर देगा। आगा जी ने निशा को तसल्ली दी, लेकिन उनके अपने चेहरे पर भी गहरी तशवीश के साए थे। वो जानते थे कि ज़ारून जिद्दी था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उसकी जिद खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। आगा जी ने फरीहा बेगम की तरफ देखते संजीदा लहजे में कहा, फरीहा, निशा से पूछो, अगर वो किसी को पसंद करती है तो हमें बता दे। कह देना कि वो अपने घर वालों को रिश्ता भेजने के लिए कहे, ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। फरीहा बेगम ने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा और फिर आगा जान की तरफ देखकर कहने लगी, लेकिन आप अचानक ये सब क्यों कह रहे हैं? आगा जी ने गहरी सांस ली। चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया थे। ज़ारून की बातें तुमने सुनी थी ना, वो हद से आगे बढ़ चुका है। मैं निशा की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। ज़ारून के वापस आने से पहले मैं निशा का निकाह कहीं और कर देना चाहता हूं, ताकि बात खत्म हो जाए। मैंने 1-2 रिश्ते देखे भी हैं, और अगर निशा की पसंद नहीं है तो हम उनमें से किसी अच्छे रिश्ते का इंतखाब कर लेंगे। फरीहा बेगम की आंखों में भी फिक्र झलकने लगी। वो निशा की परेशानी देख रही थी, मगर बेटी ने कभी खुलकर कुछ बताया नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि आज रात निशा से खुलकर बात करेंगी। रात के खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए, फरीहा बेगम निशा के कमरे में आई। निशा खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को तक रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। निशा बेटा, फरीहा बेगम ने आहिस्ता से पुकारा। वो चौंक कर पलटी। जी मामा, सब ठीक है। फरीहा बेगम ने निशा को अपने पास बिठाया और नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बेटा, आगा जी ने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। वो चाहते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो हमें बता दो, हम खुशी खुशी वहां रिश्ता लेकर जाएंगे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो वो चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह जल्द कर दिया जाए, ज़ारून के वापस आने से पहले। निशा ने मां के गले लगकर दिल खोल कर रोने के बाद थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। फरीहा बेगम उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेर रही थी, जैसे अपनी बेटी के दिल का बोझ हल्का कर रही हों। कुछ लम्हे बाद निशा ने आंसू साफ किए और हल्की सी लरसती आवाज में बोली, नहीं मामा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। निशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने फरीहा बेगम का हाथ थाम लिया। मामा, मैं किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं ज़ारून से शादी नहीं करना चाहती। मुझे उससे डर लगता है। ये कहते हुए निशा की आवाज़ रुंध गई और वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फरीहा बेगम का दिल कांप गया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी इतने खौफ में जी रही है।
اگلے دن آغا جان نے فیصلہ کیا کہ وہ نشا کے لیے خود کوئی مناسب رشتہ طے کریں گے۔ انہوں نے اپنے ایک پرانے دوست سے بات کی جن کا بیٹا ملک سے واپس آیا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور نیک لڑکا تھا۔ آغا جی نے سوچ لیا تھا کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ نکاح کی تاریخ جلدی طے کر دیں گے، اس سے پہلے کہ زارون اسلام آباد سے واپس آئے۔ نشا کی بات سن کر آغا جان نے گہری سانس لی اور اگلے ہی دن اپنے دوست کو گھر آنے کی دعوت دی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے بیٹے ازلان کے ساتھ آ گئے۔ ازلان ایک سلجھا ہوا باوقار لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آغا جان نے کوئی خاص مجبوری بتا کر جلد سے جلد نکاح کرنے کے لیے کہا تو ان کے دوست نے بھی حامی بھر لی اور پھر یوں 15 دن بعد نکاح کرنے کا سوچا۔ ازلان کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی کیونکہ اسے نشا بہت پسند آئی تھی، جبکہ نشا کے چہرے پر ایک عرصے بعد مسکراہٹ آئی تھی، مگر ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشی کتنی دیر کی ہے۔ جہاں پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، وہیں 2 آنکھیں ایسی بھی تھیں جن میں ایک ہلکی سی اداسی چھپی تھی۔ سائرہ بیگم اور توقیر کاردار بظاہر مسکرا رہے تھے، لیکن ان کے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ سب کے سامنے بیٹھے نشا اور ازلان کے رشتے کی باتیں سن رہے تھے، مگر ان کی نظروں میں ایک خاموش سا کرب جھلک رہا تھا۔ سائرہ بیگم کے دل میں نشا کے لیے ہمیشہ ماں جیسا پیار تھا۔ نشا ان کے لیے صرف سمیر کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ نشا کی ہنسی، اس کی معصوم شرارتیں اور گھر بھر میں اس کی چہکتی آواز نازیہ کے دل کو خوش کر دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون کی نشا کے لیے چاہت اپنی جگہ، مگر اس چاہت میں جو جنون شامل ہو چکا تھا وہ نشا کی زندگی کو برباد کر سکتا تھا۔ توقیر کاردار کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر بات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے لاڈ پیار نے زارون کو بگاڑ دیا ہے۔ توقیر نے کئی بار کوشش کی کہ بیٹے کو سمجھائیں، مگر زارون تھا کہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ نشا کی آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ چکے تھے، مگر وہ جانتے تھے اگر وہ نشا کی حمایت کرتے تو شاید ان کا اپنا بیٹا مزید بپھر جاتا۔ آج جب نشا کا رشتہ ازلان سے طے ہوا تو نازیہ اور توقیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو کے ساتھ ساتھ ایک نہ نظر آنے والا غم بھی چھلک رہا تھا۔ وہ نشا کی خوشی کے لیے دل سے دعا کر رہے تھے، مگر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ احساس چبھ رہا تھا کہ ان کا بیٹا، جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا۔ سائرہ بیگم نے چپکے سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ نازیہ بیگم نے جیسے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور نشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹا، ہمیشہ مسکراتی رہو۔ ان کے لہجے میں محبت کے ساتھ ایک انجانی سی تکلیف بھی چھپی تھی۔ نشا نے ان کی طرف دیکھا اور جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ شاید وہ بھی نازیہ کی آنکھوں میں چھپے جذبات کو محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ خوشی کب تک رہے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زارون کی واپسی کے بعد یہ خوشی برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ وہ سب ایک آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ ٹھیک 15 دن بعد نشا اور ازلان کے نکاح کی تاریخ طے پا گئی۔ آغا جی اور باقی گھر والے جلد از جلد نشا کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر محفوظ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ زارون کی واپسی سے پہلے یہ معاملہ طے کرنا ضروری ہے۔ گھر میں خوشیوں کی تیاری عروج پر تھی، ہر طرف چہل پہل تھی۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ خبر زارون کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے ایک پوش فلیٹ کی بالکنی میں بیٹھا تھا۔ سامنے شہر کی روشنیاں پھیلی تھی اور ہاتھ میں کرسٹل کا گلاس تھا جس میں ڈرنک چھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غضب سے سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں۔ جو ہی اسے نشا کے نکاح کی خبر ملی، پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے، اس دنیا کو آگ لگا دے، لیکن پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ کرسی پر دھنس گیا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، ایک شیطانی چمک اس کی آنکھوں میں دوڑنے لگی۔ اڑ لو سب لوگ، جتنا اڑ سکتے ہو، خوش ہو جاؤ، نکاح تو 15 دن بعد ہے نا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، پھر زور سے ہنسا۔
एक खतरनाक गूंजदार हंसी जिसमें मोहब्बत की दीवानगी नहीं बल्कि इंतकाम की आग थी। उसने ग्लास उठाया, लबों से लगाया और एक लंबा घूंट भरकर कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। चेहरे पर बला की वहशत थी और आवाज में जहर घुला हुआ था। 15 दिन बाद निकाह, और तब मैं भी धमाका करूंगा, एक ऐसा धमाका कि सब हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी और का होते देखने से पहले मैं तुम्हारी और अपनी जान ले लूंगा और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। वो फिर हंसा, इस बार इतनी शिद्दत से हंसा कि उसके हाथ में पकड़ा ग्लास लरजने लगा। वो उठा, खिड़की के पास जाकर शोलाबार निगाहों से नीचे शहर की झिलमिलाती रोशनियों को देखने लगा। खेल तो अब शुरू होगा और मुझे उम्मीद है कि सब बहुत एंजॉय भी करेंगे, उसने धीरे से कहा और ग्लास फर्श पर फेंककर चकनाचूर कर दिया। एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ फोन बंद कर दिया और लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे में आकर औंधे मुंह गिरने वाले अंदाज में लेट गया। दूसरी तरफ घर में सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। सब खुश थे, लेकिन दिल के किसी कोने में अनजाना खौफ भी सर उठा रहा था। निकाह में सिर्फ 1 दिन बाकी था। निशा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने नए सफर के ख्वाबों में खोई हुई थी। निशा की एक कज़न ने उसके हाथों पर मेहंदी लगाई। निशा ने मेहंदी सूखने के बाद कमरे की मध्यम लाइट जलाई और सुकून से सोने के लिए लेट गई। रात का वक्त था। पूरा घर खामोशी की चादर ओढ़े गहरी नींद में था, मगर निशा की नींद बहुत कच्ची थी। जरा सी आहट भी उसे जगा देती थी। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। हल्की सी चरचराहट की आवाज़ पर निशा की आंखें नीम वाह हुईं। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें खौफ से फटने लगीं। वो चीखने ही वाली थी कि अगले लम्हे किसी ने तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर भारी हाथ रख दिया। निशा की चीख हलक में दब कर रह गई। क्या हुआ स्वीटहार्ट? मुझे देखकर इतना डर क्यों रही हो? एक जाना पहचाना मगर सफाक लहजा उसके कानों से टकराया। निशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो हाथ झटकने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन उसके सामने मौजूद शख्स के मजबूत हिसार में वो कैद हो गई थी। तुमने क्या सोचा कि मैं यहां नहीं हूं तो तुम पर मेरी नजर नहीं होगी? कितनी मासूम हो तुम निशा। मुझे तुम्हारे बारे में पल पल की खबर रहती है, और तुम चली निकाह करने, वो भी मुझसे चोरी। ज़ारून की आंखों में शैतानियत की लहर थी। उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई और चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे जीते जी तुम किसी और की नहीं हो सकती। अचानक ज़ारून की आंखों में वहशत उतर आई। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने निशा की गर्दन के पास एक हसास हिस्से पर जोर दिया और निशा बेहोश होकर उसकी बाहों में ढलक गई। ज़ारून ने उसे नरमी से उठाया जैसे कोई कीमती शय हो। वो दबे कदमों पिछले दरवाजे से निकला। निशा को अपनी गाड़ी में एहतियात से बिठाया, उसका सीट बेल्ट बांधा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात की स्याही में वो गाड़ी अंधेरे रास्तों पर सरपट दौड़ रही थी। वो शहर से बहुत दूर अपने एक पोशीदा फार्म हाउस में पहुंचा, जहां के बारे में कोई नहीं जानता था। ज़ारून ने निशा को नरमी से गाड़ी से निकाला, घर के अंदर ले जाकर एक कमरे में बेड पर लेटा दिया। फिर वो उसके चेहरे के करीब आया, आहिस्ता से उसकी पेशानी से बाल हटाए और कान के करीब झुककर सरगोशी की। मैंने तो सीधे तरीके से तुम्हें अपनाना चाहा था निशा, लेकिन तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो करीब पड़े सोफे पर बैठ गया, अपनी पुष्ट सोफे पर टिकाई, आंखें बंद की और निशा के होश में आने का इंतजार करने लगा। निशा की पलकें धीरे धीरे लरसने लगी। जब उसने आंखें खोली तो सामने की सूरत हाल ने उसे लर्जा दिया। वो एक अजनबी कमरे में थी, जहां मध्यम रोशनी फैल रही थी।  थी।                                                                                                                इ 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
लेकिन उसकी नजरें निशा के चेहरे पर जमी थी। निशा का दिल कांपने लगा। उसने बमुश्किल अपने हावास बहाल किए और बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो जंबिश करने लगी, ज़ारून की आवाज ने उसे साकित कर दिया। कहाँ जा रही हो निशा? ज़ारून ने संजीदगी से पूछा। उसकी आंखों में खौफनाक दहशत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और निशा के करीब आकर उसके चेहरे को अपनी उंगली से छुआ। निशा ने झटके से अपना चेहरा पीछे किया, लेकिन ज़ारून ने उसके चेहरे को सख्ती से थाम लिया। खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरा हाथ झटका तो बहुत बुरा होगा। और हाँ, सुबह हमारा निकाह है, इसलिए खुद को दिली और ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बमुश्किल खुद को संभालते कहा, ज़ारून भाई, प्लीज़ मुझे जाने दो। आपको खुदा का वास्ता मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही ज़ारून का चेहरा लम्हे भर में सुर्ख हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो अचानक दीवार पर जोर से मुक्का मारकर चिल्लाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बनाने का फैसला कर लिया है, और अगर तुम्हें यह कबूल नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बना लूंगा। निशा खौफ से कांपने लगी। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन फार्म हाउस का इलाका सुनसान था। आसपास कोई इंसान नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो निशा, यहां तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, और ना ही कोई तुम तक पहुंच सकता है। ज़ारून ने वहशियाना मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखों में पागलपन की चमक मजीद गहरी हो गई। इधर घर में निकाह के दिन की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं, लेकिन निशा की गुमशुदगी ने सबको बेहद परेशान कर दिया। फरीहा बेगम बार बार फोन कर रही थी, लेकिन निशा का फोन तो घर पर ही रह गया था। अजलान पागलों की तरह निशा को ढूंढ रहा था, हर जगह, हर कोने में, लेकिन निशा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये सब उस ज़ारून का काम है, उसके अलावा कोई ये हरकत नहीं कर सकता। आगा जी गुस्से से धाड़े। उनकी आवाज में बेबसी और गुस्से की आमेजिश थी। तौकीर बार बार ज़ारून को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। दूसरी तरफ फार्म हाउस में निशा मुसलसल रोते हुए अल्लाह से मदद मांग रही थी। ज़ारून कभी नरमी से उसके बाल सहलाता तो कभी पागलों की तरह चीजें तोड़ने लगता, जैसे वो खुद भी अपनी वहशत के बोझ तले दब रहा हो। ज़ारून भाई, प्लीज मुझे जाने दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। निशा ने कांपती हुई आवाज में कहा। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चुप, बिल्कुल चुप, अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। ज़ारून गुर्राया। आंखों में वहशियाना चमक मजीद गहरी हो गई। कुछ ही देर में मौलवी आ जाएगा और तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी आपसे निकाह, चाहे कुछ भी हो जाए। निशा की चीख में बेबसी और हिम्मत का इम्तिजाज था। निशा के इनकार पर ज़ारून का चेहरा लम्हे भर में सुर्ख हो गया। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ निशा के चेहरे पर रसीद किया, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके होंठ से खून रिसने लगा और आंखों के गिर्द नीलाहट फैलने लगी। अच्छा चलो सब छोड़ो, मैं खाना लेकर आता हूं, पहले खाना खा लो, भूख लग रही होगी ना तुम्हें। ज़ारून कारदार बाहर गया और कुछ ही देर में खाने की ट्रे हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन निशा ने मुंह मोड़ लिया और खाना नहीं खाया। ज़ारून ने बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से पर जब्त किया और बाहर चला गया, और शाम तक वापस नहीं लौटा। लेकिन जब शाम को निशा को खाना देने आया तो निशा ने फिर इनकार कर दिया। मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। भूख नहीं है ना तुम्हें? खाना नहीं खाना, यही ना? अब तुम्हें खाना मिलेगा भी नहीं। जानती हो, ढीठ लोग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं उनकी ढिठाई तोड़ता हूं ना तो एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे। ये रोज रोज का तमाशा आज खत्म करना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सब कुछ फिर से दोहराया जाए, मैं ये नहीं चाहता।
जिस खाने को तुमने 1000 बार धुतकारा है, अब तुम ये खाना देखने के लिए तरसोगी। जानती हो इन सब में इंटरेस्टिंग बात क्या है? तुम्हें इसे एक बहुत अच्छा सबक मिलेगा। जब भूख से तुम्हारी आंतें सुकड़ जाएंगी, प्यास से होंठ खुश्क होने लगेंगे, दम घुटने लगेगा, अगर तब तक तुम्हें अकल आ गई तो ठीक, वरना अगर तुम अपनी जिद पर कायम रही तो तुम ऐसे ही भूख से मर जाओगी। अफसोस की बात तो ये होगी कि तुम्हें दफन करने के लिए मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। मैं तुम्हें यहीं इसी कमरे में कैद रखूंगा, अपने पास। कुछ घंटों में तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मुरझा जाएगा। पेशानी से गाल तक उंगली फेरी, फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म का गोश्त गलने और सड़ने लगेगा। प्लीज चुप कर जाएं। निशा ने दोनों हाथ कानों पर रखे, उसके जहरीले अल्फाज को अपनी समाज से टकराने से रोकना चाहा। ऐसे कैसे निशा, आगे सुनो। कानों से हाथ हटाए, फिर एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। रह जाएगा तो तुम्हारी हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल बेजान, जो ना बोल सकेगा और ना ही जिद कर सकेगा। जानती हो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं उसे वहां बांध दूंगा। इशारा दाएं जानिब कुर्सी की तरफ था। हैरत की बात पता क्या है कि मुझे अपने किए पर बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, पर एक बात है जो कभी नहीं बदलेगी, वो ये कि तुम आज भी मेरा इश्क हो और तब भी मेरा इश्क रहोगी। ज़ारू ने निकाह भी मुलतवी कर दिया था ताकि वो उसे खाने से इनकार करने पर सबक सिखा सके, और फिर ऐसा ही हुआ। अगला सारा दिन भी निशा को खाना नहीं दिया गया। निशा की हालत बहुत खराब हो गई। पानी। भूख और प्यास की वजह से उसके मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। वो बार बार पानी मांग रही थी, लेकिन ज़ारू ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। निशा ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो हल्का सा सर उठा सकी, फिर तकिए पर ढह गई और फिर से पानी मांगने लगी। उसकी हालत देखकर ज़ारून को तरस आ गया और गहरी सांस भरते ज़ारून उठा और जग से पानी का ग्लास भरकर निशा की तरफ बढ़ाया। निशा ने पानी देखा तो जल्दी से उठने लगी, लेकिन 2 दिन की भूखी प्यासी रहने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। ज़ारून ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और उसके मुंह से ग्लास लगा दिया। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। वो पानी ऐसे पी रही थी कि आधा उसके कपड़ों पर गिर रहा था और आधा वो पी रही थी। निशा की हालत देखकर ज़ारून के दिल को कुछ हुआ। वो उसे लिटाते हुए बाहर की जाने बढ़ा और कुछ ही देर में हाथ में कुछ खाने का सामान लेकर कमरे में आया। निशा को अपने सहारे बिठाकर छोटे छोटे नवाले उसके मुंह में डालने लगा। निशा भी बिना किसी तरद्दुद के खाना खाने लगी, क्योंकि अब उसमें भूख बर्दाश्त करने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। जब खाना खाने के बाद कुछ आसरा हुआ तो उसने आंखें खोलकर ज़ारून की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। मुझे घर छोड़ दें प्लीज, पहले हमारा निकाह होगा, फिर तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। सोच लो, अगर इनकार करोगी तब भी तुम्हें इधर ही कैद रखूंगा, अपने पास। ये सुनकर निशा की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। ज़ारून ने उसे थोड़ा और खाना खिलाया और उठकर चला गया, जबकि निशा फिर से लेटकर रोने लगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। भूख तो उसकी मिट गई, लेकिन जिस्म अभी भी बेजान और नढाल था। वो हिम्मत करके उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला देखकर एक अनजानी सी खुशी की लहर उसके अंदर सरायत कर गई। वो कमरे से निकली और इधर उधर देखते बड़े एहतियात से जा रही थी, जब सामने किसी से टकराई, और जब निशा ने आगे देखा तो हलक खुश्क हो गया। ज़ारून हाथ बांधे माथे पर बल डाले, चेहरे को सख्ती से बेंचे खड़ा, आंखों में गुस्सा लिए निशा को घूर रहा था। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं तो बस घर देख रही थी। बहुत प्यारा घर है आपका। निशा ने जल्दी से बहाना बनाया। उसके मुंह से झूठ सुनकर पहले तो ज़ारून हैरान हुआ, लेकिन फिर इसी तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज ये तुम्हारा भी हो सकता है, मगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मुझे ये घर नहीं चाहिए। मैंने अपने ही घर जाना है, निशा जिद्दी लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर ज़ारून को गुस्सा आया और अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाला
اور निशा के सामने लहराया। ये देखो, अगर तुम अभी भी ना मानी तो इसकी आधी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा और बाकी अपने वजूद में, लेकिन तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। इतना कहकर उसने हवा में एक फायर किया, जिसकी आवाज से निशा सहम कर जमीन पर बैठ गई और कानों पर हाथ रख लिए। बोलो, करोगी ना मुझसे निकाह? उसने पिस्तौल सीधा किया, निशा के माथे पर रख दिया। उसकी सांसें रुकने लगीं और वो शदीद खौफ में कपकपाने लगी। हाँ, निशा ने डरते डरते अज़बात में सर हिलाया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और ज़ारून के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। गुड गर्ल, अब जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, क्योंकि अगले 5 मिनट में मौलवी आ जाएगा। इतना कहकर वो निशा को कमरे में छोड़कर दरवाज़ा लॉक करके बाहर चला गया और निशा वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी, मगर उसकी चीखें दीवारों में गुम हो गईं और फिर कुछ ही देर में उसका निकाह ज़ारून से हो गया। निशा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो हारे हुए अंदाज में ज़मीन पर बैठी थी, जैसे ज़िंदगी उसके वजूद से निकल चुकी हो। ज़ारून ने निकाह के कागजात पर दस्तखत किए और मौलवी साहब को फ़ौरन रवाना कर दिया। दरवाज़ा बंद करके वो फातिहाना अंदाज में उसके करीब आया और उसके सामने घुटने टेक दिए। देखा, आखिरकार तुम मेरी हो गई ना निशा। मैंने कहा था तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं आपको कभी अपना शौहर नहीं मानूंगी। कोई बात नहीं, वो मैं कुछ देर में खुद ही मनवा लूंगा। हर लफ्ज़ पर जोर देते बोला और साथ ही वो निशा का चेहरा ऊपर करते उसके होंठों पर झुका और पूरी शिद्दत से अपनी तशनगी मिटाने लगा। निशा ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का देते मज़ाहमत करने लगी, लेकिन ज़ारून ने उसके दोनों हाथ उसकी कमर के साथ पिन कर दिया और उसके होंठों पर अपनी शिद्दत बढ़ा दी। निशा की सांसें मध्यम हुई तो ज़ारून आहिस्ता से पीछे हुआ और निशा के माथे से अपना माथा टिका कर लंबे लंबे सांस भरने लगा। निशा के हाथों पर जैसे ही उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो खुद को छुड़वाकर बाहर भागने लगी, लेकिन जब उसने दरवाजे का नोक घुमाया तो दरवाज़ा लॉक था। उसने डरते हुए ज़ारून की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। फिर अगले ही पल निशा को खींचकर बेड पर पटका। इससे पहले कि वो कुछ करता, आगा जान उसे पुलिस की मदद से ढूंढते हुए वहां पहुंचे और ऊंची आवाज़ में ज़ारून को पुकारने लगे। ज़ारून ने आगा जान की आवाज़ सुनी तो आंखें ज़ोर से मीच कर खोली। इन्हें भी अभी आना था, कुछ देर बाद आ जाते। चलो खैर, इनसे भी नए रिश्ते की दुआ ले लेते हैं। और जैसे ही वो नीचे गया तो उसके पीछे ही निशा भागते हुए आई और जल्दी से अपनी आगा जान के पास जाने लगी कि ज़ारून ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया और अपने साथ खड़ा कर लिया। आगा जान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और इंस्पेक्टर से कहा कि गिरफ्तार कर लें इसे, इसने मेरी पोती को अगवा किया है। लेकिन इंस्पेक्टर ने ज़ारून की तरफ देखकर सलूट मारा तो आगा जान और निशा ये देखकर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक मुजरिम है और कातिल भी। मैंने खुद इन्हें एक आदमी का कत्ल करते देखा है। नहीं मैम, आपको गलत फहमी हुई है। ये मुजरिम नहीं बल्कि एक अंडर कवर कोप है, और जिस कत्ल की आप बात कर रही हैं वो असल में इनकाउंटर में बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। क्या? नहीं सर, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है इनके बारे में। इंस्पेक्टर, आप जा सकते हैं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। पुलिस चली गई, लेकिन आगा जान अभी भी हैरान परेशान खड़े थे और ज़ारून की तरफ देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए आगा जान के सामने आया और उन्हें गले से लगा लिया। देखें आगा जान, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी भी गलती है। अगर आप सीधी तरह से मेरी बात मान लेते तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। आपने मेरी बात मानने की बजाय उल्टा मेरी गैर मौजूदगी में इसका निकाह करने लगे, वो भी किसी गैर के साथ। क्या मैं इतना ही बुरा हूं? आगा जान ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि चलो घर, सब परेशान हो रहे हैं निशा की वजह से। आगा जान उन दोनों को लेकर घर पहुंचे तो सब लोग निशा की तरफ लपके और फरीहा बेगम ने भागकर उसे गले से लगाया और उसका चेहरा हाथों में लेकर पूछने लगी, बेटा क्या तुम ठीक हो? तो निशा ने इस बात में सर हिला दिया। ज़ारून के वालिद उसकी तरफ बढ़े
اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور کہا تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی ہوئی. تم جانتے ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. زارون نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا بابا اس میں میری نہیں آپ لوگوں کی غلطی ہے. میں نے تو آپ سب کو سیدھی طرح سے منایا تھا لیکن آپ لوگ نہیں مانے تو مجھے اپنا طریقہ آزمانا پڑا. اور دیکھ لیں آج نشا میری ہے. تم جیسے ناہنجار بیٹے کو ہم کیسے پھول جیسی بچی سونپ دیتے. آغا جان نے آگے بڑھ کر انہیں چپ کروایا اور کہا بس کر دو. پھر انہیں زارون کی حقیقت بھی بتا دی جسے سب لوگ سن کر حیران رہ گئے. دن تیزی سے گزرنے لگے. اب سب نے ہی زارون اور نشا کے رشتے کو قبول کر لیا تھا اور نشا بھی آہستہ آہستہ زارون کی طرف مائل ہونے لگی تھی کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر بات کو بڑے پیار سے ہینڈل کرتا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا، جس کی وجہ سے وہ بھی اسے اپنا شوہر تسلیم کرنے لگی اور زندگی کے خواب اس کے سنگ دیکھنے لگی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں